गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्मोडायनामिक्स के पेपर का टॉपिक ब्राउनियन मोमेंट पढ़ेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने पाया कि जल में निलंबित पराग कण, जिनको कि हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। अति सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर यह पाया गया कि द्रव विरोधी सॉलों के कण भी पोलन ग्रेन्स के समान ही टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हैं। द्रवों में निलंबित इन कणों की इस गति सक्रियता को ही ब्राउनी गति या ब्राउनियन मोमेंट कहते हैं। वास्तव में परिक्षेपण माध्यम के गतिशील अणु कोलाइडी कणों से बार बार टकराते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। इस प्रकार कोलाइडी कण भी परिक्षेपण माध्यम के अणुओं से लगभग गतिज ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। चूंकि कोलाइडी कण माध्यम के अणुओं से अधिक भारी होते हैं, अतः कोलाइडी कणों की गति परिक्षेपण माध्यम के अणुओं की गति से कम होती है। तो सामान्य निलंबनों में ऐसी ब्राउनी गति नहीं होती है, क्योंकि इस अवस्था में प्रत्येक कण का द्रव्यमान ही इतना अधिक होता है कि इन कणों पर परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के टकराने का नगण्य मात्रा सा प्रभाव ही दिखाई देता है। Explanation of Brownian moment based on kinetic theory. Einstein gave a theoretical explanation of the Brownian motion. आइंस्टीन ने मान लिया कि जो पार्टिकल्स, he assumed that the particles suspended in a fluid, liquid or gas take part in the thermal motion of the molecule of the liquid. These particles are continuously stuck on all sides by the molecules of the fluid. Since the particles are of very small size, although very large compared with the size of the molecules, the number of molecules striking them on opposite sides do not always exactly balance. Hence, a particle always experiences an unbalanced force and is continuously driven up in all directions. Thus, these particles behave as the large molecules of the fluid. Determination of Avogadro's number based on this theory. The colloidal particles suspended in a liquid behave like a gas which is in equilibrium under the influence of gravity. Therefore, their density varies with height in the liquid in the same way as the pressure of the atmosphere varies with altitude. इसको निकालने के लिए consider a small element of the gas at a height h from the bottom. Let A be the phase area, dh the thickness of the element, the mass of the element is therefore rho a dh, and its weight is rho g a dh, where rho is the density of the gas at height h. Let P be the upward pressure on the lower phase and P plus dP is the downward pressure on the upper phase of the element. The upward force acting on the element is PA, and the downward force is P plus dP into A, plus the weight of the element is rho g a and dh. Since the element is in equilibrium, the resultant force on it must be zero. Therefore, PA is equal to P plus dPA plus rho g a into dh. इसको सिंप्लीफाई करके जब हम dP कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा dP is equal to minus rho g into dh. मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हमारे पास होती है इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT। साथ ही साथ V को हम लिखते हैं m अपॉन रो, वेयर m इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस। If small m be the mass of the gas particle and n is the Avogadro's number,
then capital M is equal to small m into n, so that अगर हम ये m की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन में तो हमारे पास आएगा v is equal to mn डिवाइडेड बाय रो। ये v की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जहां पर हमारे पास गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू RT, तो देयरफॉर P v की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की स्मॉल m n डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू RT। यहां से हम रो डेंसिटी निकाल सकते हैं, रो इज इक्वल टू PMN डिवाइडेड बाय RT। ये वैल्यू जो है रो की वो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो हमने ऊपर निकाली थी, तो dP अपॉन P इज इक्वल टू माइनस ऑफ mng divided by RT into dH. If small n represents the number of molecule per unit volume in the liquid, therefore dN upon n is equal to होगा dP upon P। तो इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में जहां पर हमने dP अपॉन P निकाला है वहां पर हम उसको dN अपॉन n से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो dN अपॉन n इज इक्वल टू माइनस ऑफ mng अपॉन RT इंटू DH। सपोज h इज इक्वल टू 0 पर n इज इक्वल टू n0 है, तो इस इक्वेशन को अगर हम n इंटीग्रेट करें 0 से h हाइट तक, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम n0 टू n dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस mng अपॉन RT कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू h dh। इसको इंटीग्रेट करने पर हमारे पास आएगा लॉग विद द नेचुरल बेस n अपॉन n0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ mng अपॉन RT इंटू h। एंटीलॉग लेके n अपॉन n0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस mngh अपॉन RT। हमें स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल n क्रॉस मल्टीप्लाई करके n0 e रेज टू द पावर माइनस ऑफ mngh अपॉन RT, या लॉग with the natural base n upon n0 is equal to minus of mngh upon RT। अगर हम कैपिटल N निकालना चाहते हैं तो कैपिटल N इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय V रो GH लॉग विद द नेचुरल बेस n0 अपॉन n। इस इक्वेशन से हम अवोगाद्रोस नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।